Good afternoon, all of you guys. Good afternoon of all of you. Okay, so guys, welcome to this session, which is we call it as LMR, last minute revision on behalf of WIRC, Western India Regional Council of ICAI. Before I start this course, I would really thank the whole council, the Central Council and the Western India Regional Council for arranging this course in the last minute for the students and for the students' benefit. We were already arranging such courses for CA Inter as well as CA Final, but for CA Foundation this was missing, so this is a really good initiative, and I am sure all of the students who are joined as participants, I am sure all of you are gonna get a lot of benefit out of it in this course, which is from 5th of this month to 12th of this month. I request everybody to keep their mic off. Kushi, please keep your mic off. Please don't disturb the lectures. I request all the students to keep their microphones off completely. Whatever you want to interact, you can interact on the chat box, and the chat box is completely all yours. So guys, heartiest good afternoon to all the students as well. I'm sure last 2 days have been wonderful with all of you. You had yesterday Tejas sir for law, right? Yes. And day before you had Javin sir for BCK, business commercial knowledge, right? So chalo aaj LR shuru karte hain. Before I start logical reasoning, let me also tell you that the last 2 days of this course are devoted to maths and stats, that is 11th and 12th. So technically we have 2.5 sessions to cover our whole subject of mathematics, logical reasoning and statistics. Now at this stage we have to understand that हर बच्चा जब CAFC का एग्जाम देता है ना, तो एक ही चीज को बैंक बना के जाता है. किसको बैंक बना के जाता है? LR. बोलते भैया 20 मार्क तो लाना ही है. So the moment you have 20 marks, which is the bonus one for LR, you know that even if you don't perform that well in math or stats, still you will clear the whole subject because LR helps you to score. So how many of you agree with this कि हम LR के भरोसे एग्जाम देने वाले बच्चों? How many of you agree with this कि LR के भरोसे एग्जाम देने वाले हैं? है ना भैया, LR के भरोसे एग्जाम देने वाले. तो आज का 3 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको पता है कि हमको LR पे स्कोर करने का है. ठीक है, we know that yes, this is something which we can do it, not unlike subject of mathematics and statistics. बड़ी बात यह है, I repeat, the most important thing is ये LR में जब questions आता है ना, तो sometimes the questions are very tricky. तो what are we going to do in this session? What is the output of this session is very important. कि आपको क्या मिलना है. So I am here not to teach you LR in the last minute, but my whole focus of this session is कि आपको LR के shortcut मिले कि भैया ये question आया तो इसको कितना quickly solve करना है. So even today all of you are gonna do tricky questions along with me. क्या करने वाले हम? Tricky questions. सब tricky questions करेंगे और tricky questions हम solve करेंगे और सब लोग हमें फटाफट आंसर देंगे. अपने को ये देखना है कि अपना आंसर कितने टाइम में आता है. We have to the crucial question is not answer right आ रहा है. The crucial question is क्या आंसर विद इन द टाइम फ्रेम आ रहा है. बिकॉज अगर LR में हमने जितना कम टाइम डिवोट किया एग्जाम में, उतना ज्यादा टाइम हमको मिलेगा मैथ्स और स्टैट्स सॉल्व करने में. एंड यू नो व्हाट, इन CAFC 2 ही सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को रोकते हैं पास होने से. इफ एनीबडी इज आस्किंग मी कि CA फाउंडेशन का रिजल्ट सर 30% आता है तो 70% बच्चे फेल क्यों होते हैं? So is a student failing in accountancy? No. Is a student failing in economics and BCK? No. The student is failing in a subject of math, LR stats as well as law and BCR. Law and BCR because of poor writing skills. As I could even read the chats कि सब लोग का एक क्वेश्चन पक्का है कि सर लॉ में आंसर कैसा लिखना चाहिए, हाउ टू राइट, सबका एक ही प्रॉब्लम दिखता है. BCR के लिए भी आप लोग ने आज चैट बॉक्स में लिख दिया है हाउ टू राइट. तो ये एक हर बच्चे का प्रॉब्लम है कि लिखना कैसे है. सो राइटिंग स्किल्स इज 1 and 2 mathematical skills is 2.
इफ यू आर फोकसिंग ओनली ऑन 2 स्किल सेट, कौन से 2 स्किल सेट? राइटिंग स्किल सेट एंड मैथमेटिकल स्किल सेट, मतलब हम वी आर डिजर्विंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो गाइस लेट्स बिगिन दिस कोर्स. आपको पता है ना आपको कितना सिलेबस है, एक बार देख लेते हैं तो आपको याद आ जाएगा. आई रिपीट, लेट्स सी द सिलेबस. ऐसा कोई है जिसने अब तक शुरू नहीं किया है पढ़ाई? बोला सर आज तो इसी कोर्स के भरोसे चल रहे हैं. क्या आप आने वाले थे, पढ़ाने वाले थे? हमने सोचा आज ही पढ़ लेंगे. सो गाइस अगर हम एलआर की बात करते हैं, सो यू नो व्हाट, इनिशियली इन एलआर वी हैड 5 चैप्टर्स. आप में से कोई ऐसा है जिनके पास अगर ओल्ड मॉड्यूल है? इफ यू हैव ओल्ड मॉड्यूल, सुबह let me answer your query that yes this lecture will be mix of Hindi and English because we have crowd even from North India. So this will be a mixed lecture in which the language which will be used in the whole class will be English. So coming back to my point, in LR we had 5 chapters. So those students who have old module may also have 5 chapters. But please guys remember at present we have only 4 chapters which are applicable to us. सो जिस स्टूडेंट के मॉड्यूल में अगर आपको गलती से सिलॉजिज्म दिख रहा है, आई रिपीट, इफ यू कैन सी सिलॉजिज्म एज अ चैप्टर इन एलआर, यू हैव टू इग्नोर इट. द न्यू सिलेबस, दैट इज दिस सिलेबस, कंसिस्ट ओनली ऑफ 4 चैप्टर्स ऑफ एलआर, which is number series, coding, decoding, odd man out. We have one more chapter on directions, one chapter on sitting arrangements, and one chapter on blood relations. These are the 4 chapters which are there in our subject. Is that very, very clear to all of you? I'm sure all of you will be sitting with the ICAI study material. I repeat, all of you will be sitting with the ICAI study material. इसमें आपको कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है. This is a completely online session. तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास हाथ में नोटबुक होना चाहिए, एक पेन और पेंसिल होना चाहिए, and you should be having with the study material. So guys, चलो फटाफट रेडी हो जाओ, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए. All of you should be sitting with your own notebooks, sitting with pen, pencil, and sitting with ICAI study mat. Once you are ready, let me know. Done बोल दीजिए सिर्फ चैट में कि हम सब तैयार है. All of you are ready. We can proceed. Lovely guys. This is one disadvantage of the technology that I cannot see you. So obviously I have to ask you whether are you ready or not. Great guys, चलो फुल जोश है, चालू करते हैं. There are 4 chapters. शुरू करते हैं. तो सबसे पहले you know what I have noticed in these 4 chapters, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टूडेंट को पड़ता है एक चैप्टर जिधर से मैं आज शुरू करूंगा, वो है ब्लड रिलेशंस. सबसे ज्यादा लोगों को जो डिफिकल्ट पड़ता है हम वहीं से आज का लेक्चर शुरू करते हैं. उसका रीजन है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, माय जॉब कि पहले उसको क्लियर किया जाए. सो गाइस आई एम गोना स्टार्ट दिस क्लास विद ब्लड रिलेशंस. एवरीबडी प्लीज कम ऑन ब्लड रिलेशंस चैप्टर. दिस इज अवर लास्ट चैप्टर ऑन एलआर. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम ऑन ब्लड रिलेशंस, our first topic of the day. Yes, please go ahead. Yeah, please, can you repeat your question? No, absolutely ICAI material. Okay, so all of you are ready now? Great. चलो ब्लड रिलेशन से शुरू करते हैं गाइस. सो एज वी ऑल नो कि यू नो व्हाट, थोड़ा बहुत क्या है, जब से ब्लड रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है. राइट नाउ वी ऑल आर यूज्ड टू स्टेइंग इन स्मॉल फैमिलीज, है ना, न्यूक्लियर फैमिलीज. तो पहले जैसे हमारे बड़े रिश्तेदार हम पहले साथ में रहते थे, यू नो वी यूज्ड टू स्टे इन अ बिग हाउस इन विच यू नो 60-70 पीपल यूज्ड टू स्टे. ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई है एंड देयरफॉर ब्लड रिलेशंस समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ब्लड रिलेशंस. सो फर्स्ट कम्स द ट्रिक. सो द ट्रिक इज, लेट्स प्रिज्यूम इट इज मी. ओके, दिस इज जिनेश सर. ओके, ऑब्वियसली आई हैव अ वाइफ, है ना. तो पहला, मेरी अगर वाइफ है तो मुझे क्या बोलेंगे? हस्बैंड. ओके,
और मेरी बीवी को क्या बोलेंगे? वाइफ, है ना। अब आई रिपीट, यू हैव टू अंडरस्टैंड टू साइड्स। मेरे पिताजी मतलब मेरे फादर, है ना। सो ऑन माई फादर्स साइड वॉट एवर रिलेटिव्स कम, आई विल कॉल देम एज पैटर्नल रिलेटिव्स। क्या बोलेंगे? पैटर्नल रिलेटिव्स, है ना। अब मेरी मदर के साइड के जो रिलेटिव्स है उनको हम बोलेंगे मैटरनल रिलेटिव्स। क्या बोलेंगे? फटाफट बोलो, मैटरनल रिलेटिव्स। ऑल ऑफ यू टुगेदर, कम ऑन। पैटर्नल डैड साइड, मैटरनल मॉम साइड। दिस इज द वे वी अंडरस्टैंड द रिलेशंस एज, है ना। कम ऑन। बेस्ट पॉइंट, I repeat, one of the most important advantage in English is that, you know, for dada or nana we use grandfather, है ना। and for grandmother, भले वो दादी हो या नानी हो, नानी मतलब who is नानी? mom's mother, अरे हाँ या ना, mom's mother, है ना। तो नानी हो या डैड की मम्मी हो, we will use grandmother, तो बहुत इजी हो जाता है ना। वन मोर एडवांटेज इन इंग्लिश, मेरे ताऊ जी हो मतलब मेरे पापा के बड़े भाई हो या पापा के छोटे भाई हो, है ना, मैं अंकल ही बोलूंगा, आई विल कॉल अंकल, है ना। सेम वे मेरे मदर के बड़े भाई हो, मदर के छोटे भाई हो, मेरा कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं क्या बोलूंगा? अंकल। हमको इधर चाचा जी, ताऊ जी, काका जी, मौसा जी, मामा जी, सब कुछ एक ही है, फूफा जी, एवरीथिंग इज वन, अंकल। और उनकी मिसिस को बोलेंगे आंट। क्या बोलेंगे? आंट। इज दिस वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इन सबके बच्चे और हम सब क्या हो जाएंगे? कजिन्स। क्या हो जाएंगे? बोलो, कजिन्स। तो इधर देयर बी कजिन ब्रदर्स और कजिन सिस्टर। सो व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशंस गाइस, व्हेन यू रीड क्वेश्चन ऑन ब्लड रिलेशंस, पहला चीज ये पता करना कि वो जो आपको पूछ रहे उसका जेंडर क्या है। बोलो, क्या पता करना? बोलो, जेंडर। पहले लिखो, पॉइंट नंबर 1 लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। नंबर 1 पॉइंट लिखो, प्लीज आइडेंटिफाई द जेंडर। चला लिहूया मराठी मध्ये, जेंडर, है ना। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? बोलो, जेंडर। लिखा स्टेप 1, जेंडर आइडेंटिफिकेशन, है ना। जेंडर मतलब हम ये देखेंगे वो मेल है कि फीमेल, कौन सा रिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं। आंसर में मेल आने वाला है कोई, मतलब लड़का आंसर आने वाला है मेल जेंडर या फीमेल जेंडर। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? स्टेप 1 इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, तो यहां पे देखेंगे, हमने ये सब तो जैसे पढ़ लिया है। हम यहां से जब क्वेश्चंस करेंगे, सो प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहले क्या देखेंगे? बोलो, स्टेप 1 क्या देखेंगे? बोलो, जेंडर। स्टेप 2 क्या देखेंगे? स्टेप 2 ये देखेंगे, आर दे आस्किंग अस। सुनो सुनो, पहले सुनो, फिर लिखवाऊंगा मैं, लिखना नहीं है डायरेक्ट, पहले सुनना है। क्या सुनोगे? कि वो किस जनरेशन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो किस, क्या वो मेरी जनरेशन की बात कर रहा है, क्वेश्चन मेरे ऊपर वाले जनरेशन की बात कर रहा है, या क्वेश्चन मेरे नीचे वाले जनरेशन की बात। टेक्निकली हाउ मेनी जनरेशंस विल बी इन्वॉल्व? 3 जनरेशंस, योर ओन जनरेशन, द जनरेशन अबाव यू और द जनरेशन below you. I repeat, question talks about how many generations? So second step, identify the generation. Second step, identify the generation. Come on, write down. Second step, identify the generations. Everybody is very clear? So what was the first step? Come on, revise fast. What was the step 1? जेंडर। जेंडर के बाद जनरेशन। बोलो, फर्स्ट स्टेप जेंडर, जनरेशन, जी जी याद रहेगा, तो जी जी जेंडर, बराबर है। बोलो, जेंडर, जनरेशन। ये क्लियर है? जेंडर एंड जनरेशन। नाउ यू आस्क मी, सर उसके बाद क्या करना है? व्हाट इज द थर्ड स्टेप? तो जेंडर आइडेंटिफाई कर लिया, जनरेशन आइडेंटिफाई कर लिया, थर्ड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द रिलेशन। तो थर्ड स्टेप आ जाओ, रिलेशन लिखो, थर्ड स्टेप रिलेशन। और ये 3 चीजों में हमें मिल जाएगा, 100% आंसर मिल जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। ओके, आई विल डू इट फॉर यू। एंड यू नो व्हाट, आई डोंट वांट आंसर्स राइट नाउ, आपको मेरे को बेस सिखाना है, मेरा स्टाइल सिखाना है ना। तो बोलो, पहला स्टेप क्या करेंगे? बोलो फास्ट, जेंडर, जनरेशन, रिलेशन। बोलते जाओ, जेंडर, जनरेशन, रिलेशन, जोर से, जेंडर, जनरेशन, रिलेशन। इज दैट वेरी वेरी क्लियर?
शाबाश, धमाल। चलो शुरू करते हैं और इसको करके देखेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। ऑल ऑफ अस आर रेडी, ऑल ऑफ अस आर रेडी फॉर द क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। रेडी? चलो सब रेडी, शाबाश। सो ये मटेरियल जो मैंने खोला है, आई वुड रिपीट दोज हु आर लेट ज्वाइनिंग, दोज हु आर लेट ज्वाइनिंग लेट मी रिपीट, ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, ओके, ICI मटेरियल है, विच शुड बी योर बाइबल फॉर द एग्जाम्स। चालू करते हैं। लेट्स रीड द फर्स्ट वन। दे से A is B's daughter। क्या बोला है? बोलो, A is B's daughter, मतलब B की डॉटर का नाम क्या है? A। स्टेप वाइज कॉमा तक अलग से पढ़ेंगे। A is B's daughter। तो देखो मैंने यहां पे पहले B लिखा, क्या लिखा? बोलो, B। B की डॉटर कौन है? A का जेंडर क्या है? बोलो, फीमेल, क्योंकि डॉटर है ना, डॉटर का जेंडर क्या हुआ? फीमेल। डॉटर की जनरेशन होगी तो मैं एरो नीचे करूंगा, पेरेंट की जनरेशन होगी तो एरो ऊपर। अपन एरो स्टाइल कर रहे हैं, ओके, वी आर डूइंग द एरो स्टाइल। एग्जाम में आप क्या करोगे बॉस? एग्जाम में यू विल यूज पेंसिल, एग्जाम में यू विल यूज पेंसिल से आप ऐसे ही डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बना के फटाफट इरेज करोगे, उसी जगह पे सेकंड डायग्राम बनाओगे, क्योंकि हमें रफ शीट ज्यादा नहीं मिलने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यू यूज द सेम रफ शीट, पेंसिल से करना है, इरेज करना है, फटाक से दूसरा रिलेशन वहां डालना है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो चालू करते हैं। B is B's daughter। B कौन है? B किसकी मम्मी है? B C की, ओ, B मम्मी है, पर B किसकी मम्मी है? ओके, अगर B C की मम्मी है तो C इधर ही आएगा। अरे हाँ या ना? तो A और C ये जो है ये सेम जनरेशन हो गए, पर अभी तक मुझे C का जेंडर बोला, पर B का जेंडर बोल दिया कि ये फीमेल है, क्योंकि ये मदर है, मदर इज ऑलवेज अ फीमेल। मुझे जेंडर मालूम पड़ गया, ओके, पर मुझे ये नहीं मालूम कि सी लड़का है या लड़की है। अब बोला है डी जो है, डी थर्ड लाइन बोला है, डी इज सीज ब्रदर। डी कौन है? बोलो, सी का, तो इसी जनरेशन का बंदा हुआ, वो जनरेशन सेम है। डी ब्रदर है, ब्रदर है तो ये कौन सा जनरेशन है? मेल। जनरेशन मैंने सेम रखा है, सेम जनरेशन आई विल राइट इन सेम लाइन, सेम जनरेशन आई विल राइट इन सेम लाइन। एंड फर्दर दे से हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी और ए में क्या रिश्ता है? तो रिश्ता क्या कहलाता है? आई रिपीट, रिश्ता क्या कहलाता है? व्हाट इज द रिलेशन कॉल्ड एज बिटवीन द डी एंड ए? वी नो ए इज अ फीमेल, वी नो डी इज अ मेल। तो हमने जेंडर आइडेंटिफाई कर लिया, जनरेशन आइडेंटिफाई कर लिया, अब रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर इन्होंने पूछा होता ए डी की क्या लगती है? बोलो, ए, तो ए डी की बहन लगती, पर डी ए का क्या लगता है? भाई। आई रिपीट, ए डी की क्या लगती? सिस्टर, डी ए का ब्रदर। तो देयरफॉर द आंसर इज ब्रदर। इज द आंसर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एवरीवन इज वेरी क्लियर विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट? आप देख रहे हो ना क्या कर रहे हैं? पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे? बोलो फास्ट, जेंडर, जेंडर के बाद क्या करेंगे? जनरेशन, जनरेशन के बाद क्या करेंगे? रिलेशंस। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। So guys, all of you are clear? Come on, fast reply on the chat. धमाल। जल्दी 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 चैट बॉक्स को यूज करो, एक्टिवनेस दिखाओ, ऐसा भर दो उसको। जितना चैट बॉक्स भरोगे इंस्टीट्यूट मार्कशीट में उतने ही मार्क्स भरेगा, ऐसा मेरा मानना है। आए धमाल, मार्क्स बनाने वाला तो एक कसम, वन साइड। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो गाइस, चलो गाइस, ये था इजी वाला क्वेश्चन, ओके, दिस वाज इजी क्वेश्चन, है ना? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। डू यू वांट मी टू पिक अप मोर 2-3 इजी क्वेश्चंस? डू यू ऑल वांट मी टू पिक अप 2-3 इजी क्वेश्चंस एंड देन गो इट द नेक्स्ट लेवल? ग्रेट। कैन वी पिक अप सम ट्रिकी क्वेश्चंस नाउ? ओके, सो वी कैन पिक अप सम ट्रिकी क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं, है ना? तो देखो यहां पे हम आते हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पे, जहां पे ये जो है ना, ये यू नो सर्टन यू नो क्वेश्चंस जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगता है। तो मैं एक 15th क्वेश्चन पे आ रहा हूं। सी आई हैव 15th क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। 15th क्वेश्चन, रेडी? All of you ready with the 15th question?
क्वेश्चन नंबर 1 किया मैंने, सीधा 15 कर रहा हूं, ठीक है। आफ्टर 1 आई एम पिकिंग अप 15th क्वेश्चन। चलो अब वापस मेरा स्टाइल देखेंगे, मैं स्लाइड यहीं रख रहा हूं। आई रिपीट, दोज हु आर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट देम स्लाइड्स के फोटो खींचते जाना। क्वेश्चन नंबर भी लिख के देता हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, स्लाइड्स के फोटो खींच लेना, क्लिक अ पिक्चर ऑफ द स्लाइड सो दैट आपको एग्जैक्ट याद है द वे आई एम डूइंग इट। यू कैन क्लिक अ पिक्चर ऑफ द स्लाइड। गाइस स्नैप स्टोरी मत डालना। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन टुगेदर। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। एक्स एंड वाई आर, तो मेरे को एक बात बताओ, एक इन्होंने एक जनरेशन दी है कि एक्स और वाई ये दोनों एक ही जनरेशन के और दोनों क्या है, मेल्स है और दोनों भाई है। अरे हाँ या ना, तो मैंने उनको एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। और मेरे को जनरेशन मालूम है और मुझे क्या मालूम है, जेंडर, तो मैंने दोनों चीज साथ में लिखी। आर इज द फादर ऑफ वाई, आर इज द फादर ऑफ। अभी अगर आर वाई का फादर है तो ये आर है और ये भी मेल है, यस और नो। और फादर है तो देखो मैंने एरो क्या किया, अप साइड। एरो क्या किया मैंने, अप साइड। अगर सन होता तो एरो क्या करता, डाउन साइड। फादर अप साइड, सन डाउन साइड। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है एस इज द ब्रदर ऑफ टी। एस इज द ब्रदर ऑफ, मला टी पण माहिती नाही आणि एस पण माहिती नाही. I don't know who's S, I don't know who's T. I cannot use this information right now, so I'll keep it silent. इन्होंने बोला है S is a brother of T and he is also a maternal uncle of X. मतलब S जो है वो कौन है, बोलो बोलो फास्ट, S कौन है, ब्रदर ऑफ T. ब्रदर ऑफ T है, बराबर है, गुड बॉय, ब्रदर ऑफ T है, बट वो मैटरनल अंकल किसका है, तो X ये रहा. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो X का अंकल मतलब ये इस जनरेशन में आएगा, क्योंकि अंकल मतलब ऊपर का जनरेशन हुआ है ना. तो X का जो मैटरनल अंकल है, X का जो, वही कौन है, बोलो S है. एवरीबडी इज गेटिंग दिस क्वेरी क्लियर? कैसे किया मैंने, मैटरनल अंकल को सब लोग ध्यान से देखो. एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटरनल ब्रदर. मैंने कैसे किया देखो कितना इजीली, सेम जनरेशन में लिख दिया खाली. वेरी गुड निकिता, वेरी क्विक टू रिप्लाई, शाबाश. आगे बढ़ते हैं. मैटरनल अंकल लिख दिया, तो अभी ये आपस पढ़ते हैं. अब मुझे एस कौन है मालूम पड़ा, एस इज ऑल्सो द ब्रदर ऑफ टी. एस इज ऑल्सो द ब्रदर ऑफ, तो मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे एस और टी जो है ये ब्रो, अरे हाँ ना, ब्रोज है, और ये दोनों मेल है. अरे हाँ ना, अरे हाँ ना, ये ब्रो है और ये मेल है. यस और नो? एवरीबडी इज वेरी क्लियर? अच्छा, एस और टी भाई भाई है. एस और टी, आई रिपीट, एस और टी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, भाई भाई बोलो, भाई भाई बोलो, एस और टी, भाई भाई बोलो, एस और टी, भाई भाई. अब यहां पे उन्होंने बोला है व्हाट इज टी रिलेटेड टू आर. व्हाट इज टी रिलेटेड टू आर? इन शॉर्ट मुझे ये तो मालूम है कि टी और आर एक ही जनरेशन से बिलोंग करते हैं. बोलो फास्ट, डू दे बिलोंग टू द सेम जनरेशन? आंसर मी यस और नो. डू दे बिलोंग टू द सेम जनरेशन? डू आई नो द जेंडर? यस. बोलो क्या, कैसे मालूम है? क्योंकि इसने बोला था, आई रिपीट, X and Y are brothers, R is a father, R is a stop, R is a father of Y, मतलब R is a male, R is a okay. अब इसने बोला है S is the brother of T, S is the brother of, तो मुझे T ब्रो है, ये कंफर्म है क्या? कंफर्म है क्या T ब्रो है? S भाई है ऐसा बोला है कि T भी S का भाई है? कम ऑन, हाँ या ना? नहीं बोला है. कैन आई टेक देम ब्रोस? नो. कैन आई टेक देम ब्रोस? नो. आई हैव टू अंडरस्टैंड, ये तो मेल है, इसका जेंडर क्वेश्चन मार्क है. बोलो क्या है जेंडर? जल्दी बोलो, जेंडर क्वेश्चन मार्क. जनरेशन क्लियर है बट जेंडर क्वेश्चन मार्क है. बोलो जनरेशन क्लियर है बट जेंडर क्वेश्चन मार्क है. अब मुझे ये मालूम है ये ब्रदर है, ये ब्रदर है. टी क्या है मुझे पता नहीं है. अब ये मुझे पूछ रहा है टी और आर का रिश्ता
क्या कहलाता है? इन सच क्वेश्चंस आई हैव टू यूज माय ऑप्शंस। पहला आंसर है मदर। पहला आंसर क्या है? सेम जनरेशन की मां कैसे होगी? नहीं होगी। बोलो, सेम जनरेशन मदर होती है क्या? मदर इज 1 जनरेशन अबाव अस। बोलो फास्ट, मदर इज 1 जनरेशन अबाव अस। सो आंसर कैन नॉट बी मदर। आंसर कैन नॉट बी मदर। अच्छा, अब इसने बोला है सिस्टर। क्या बोला है? सिस्टर। पर सिस्टर अगर T इज रिलेटेड टू R पूछा है, हाँ या ना? T इज रिलेटेड टू R पूछा है। अंकल की क्या बोल रहा है? अंकल है ना, X और Y के पप्पा कौन है? R, फादर है ना वो। और उसके X के मैटरनल मतलब मम्मी के साइड के, किसके साइड के? मम्मी के साइड के मेरी बहन कैसे होगी? मतलब सिस्टर इज नॉट एन ऑप्शन। सिस्टर इज नॉट एन। सो इफ मदर इज नॉट एन ऑप्शन, सिस्टर इज नॉट एन ऑप्शन, अरे हाँ या ना? हाँ या ना? मम्मी के साइड के लोग मेरे भाई भी नहीं हो सकते। मतलब ब्रदर सिस्टर दोनों ऑप्शन नहीं है, मदर ऑप्शन नहीं है। इन शॉर्ट ये दोनों मियां बीवी है, इन विच इसका जेंडर फीमेल है और ये रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है, इन विच R इज अ हस्बैंड एंड T इज अ वाइफ। Everybody is very clear. Everybody is very clear. Come on guys, please reply on the chat. The logic is clear. मैंने सारे ऑप्शंस के साथ चेक करके बताया कि क्यों क्या नहीं हो सकता। अगर हम लाइफ में जेंडर और जनरेशन पे फोकस करेंगे, है ना? आई रिपीट, हम किस पे फोकस करेंगे? जेंडर और जनरेशन पे फोकस करेंगे। जेंडर और जनरेशन पे फोकस करेंगे तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। So guys, everybody is clear with this question number 15. I request all of you to click a picture. I request all of you to click a picture. Please click a picture. Please click a picture. All of you please click a picture. Done. Great, great guys, great. चलो, तो ये मैंने पहले एक इजी वाला कराया, दूसरा मैंने प्रिजम्पशन वाला और ट्रिकी वाला कराया। अब हम थोड़े इस पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम देखेंगे कि हमको कितना आता है। ओके, नाउ विल प्रैक्टिस दिस। आई एम एक्चुअली थैंकफुल कि कम से कम ऐसे कोर्स रखे हैं। यू नो व्हाट, आई हैव गॉट सो मेनी क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स लाइक यू कि सर इतने कम टाइम में कैसे हो पाएगा। बट यू नो व्हाट guys, even if you study last 15 days very seriously for CAFC, you can crack all of CAFC. Are you getting my point? ये लेवल 15 दिन अगर आपने अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर दी ना बॉस, तो पक्का है कि आप पास हो जाएंगे, हाँ या ना? 100% पास हो जाएंगे। तो आपको अभी जी जान से मेहनत करनी है, यही टाइम है गाइस। लेट्स नॉट वेस्ट इट एंड आगे बढ़ते हैं। ये था 15th क्वेश्चन। अब मैं कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस लेता हूं। जरा सा 18th क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। दिस इज 18th अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल। अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में 18th क्वेश्चन है। एवरीबडी ऑन 18th क्वेश्चन। यस सुमित, चलो फास्ट बच्चों, 18th क्वेश्चन पे जरा सा आ जाएंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है? मैं सारे ट्रिकी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहा हूं वन बाय वन, बिकॉज मुझे पता है कि एग्जैक्टली कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इफ यू हैव सम क्वेरीज यू कैन ऑल्सो आस्क मी यू कैन टेल मी कि सर ये क्वेश्चन जरा करा दीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 18। ऑल ऑफ यू रेडी विद द बुक? लवली। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट हैव ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग द क्वेश्चन। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ P। मुझे P के अंकल फाइंड करने हैं, तो मैं अपने आप को पहले P मान लूंगा और मुझे मेरे अंकल ढूंढने हैं, है ना? तो मेरे अंकल वो मैटरनल भी हो सकते हैं और वो पैटर्नल भी हो सकते हैं। बोलो, मेरे अंकल मैटरनल भी हो सकते हैं, मेरे अंकल पैटर्नल भी हो सकते हैं। मुझे मेरे अंकल फाइंड करने, मतलब वो मामा जी, फूफा जी, मौसा जी, काका जी, चाचा जी, ताऊ जी, इन 6 में से कोई एक होंगे। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर। क्या बात है हर्षिनी, दिशा, वंशिता, रुचिता, शांति, निकिता, शुभम,
लवली लवली लवली, व्हाट्स द पेस, क्या बात है, मतलब चैट बॉक्स भर दिया है तुम लोगों ने, क्या बात। सो लेट मी जस्ट शो यू द वे, क्या बात है, मतलब अब तो मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, मतलब द स्पीड ऑफ द चैट, आई कैन नॉट इवन टेक योर नेम्स गाइस, आई एम रियली सॉरी। सो यस, मेघा, सबा, सना, अरहम, अंशिता, लवली गाइस, लवली बच्चे लोग, क्या बात है। के इज द ब्रदर ऑफ, चलो के किसका भाई है, पहले के जे का भाई है, व्हाट इज द स्टेप 1, के किसका भाई है, जे का भाई है। एम किसकी सिस्टर है, के की सिस्टर है, तो आई रिपीट, के किसका भाई है, जे का, तो के का जेंडर पता है, क्या है, मेल, जे का जेंडर पता, सी जेंडर याद रहेगा। अब एम और एस के बारे में बोला है, एम इज द सिस्टर ऑफ के, एम इज द सिस्टर ऑफ, आई एम सॉरी, एम इज द सिस्टर ऑफ, तो ये एम इधर आ गई और ये सिस्टर है, मतलब ये फीमेल है, यस और नो, यहां लिख दिया। पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, मतलब पी आणि एन माहिती नहीं, वेट, एन इज द डॉटर ऑफ, पहले वो लिखूंगा, एन इज द डॉटर, मतलब एन को इधर लेके जाऊंगा नीचे और इसको लिख दूंगा फीमेल, क्या लिख दूंगा, फीमेल। और अब ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ूंगा गाइस, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी इज द ब्रदर ऑफ, पी भाई है, मतलब ये मेल है, अरे आया ना। अब मैंने देखो जेंडर जनरेशन लिख दिया, तो बच्चे लोग मैंने देखा कि ऑलमोस्ट यू नो मेजॉरिटी ऑफ द क्लास हैव आंसर्ड। आर्यन, ये के क्या है, शाहरुख खान जैसा हरकत मत कर बेटा, बैंकर है तू, बैंकर, सीए बन रहा है, बैंकर, सीए आर्यन बैंकर। आगे बढ़ते हैं, चालू करते हैं। अब पूछा है फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी, पी के अंकल कौन है, बोलो फास्ट, हु इज द अंकल ऑफ पी, के। आंट बोला होता तो कौन होता, हु विल टेल मी, आंट पूछा होता तो कौन होता, क्या बात है, क्या बात, धमाल, जोर से। आंट पूछा होता तो एम, अंकल पूछा तो के, धमाल। सो गाइस, ऑल ऑफ यू आर लविंग दिस स्टाइल। हम लोग जनरेशन वाइज और जेंडर वाइज पढ़ रहे हैं, दिमाग में बैठ रहा है कैसा बिठाना है, इज इट वेरी वेरी क्लियर। एग्जाम में मेंटल पीस चाहिए एलआर का पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एग्जाम में धमाल होना चाहिए, मेंटल पीस रखना है, दिमाग पूरा सो के लेना मैथ्स का पेपर। मैथ्स के पेपर में जितना सो के जाओगे उतना ज्यादा बेटर है। इफ योर ब्रेन इज एक्टिव यू विल बी एबल टू आंसर मच बेटर एंड यू विल नॉट लैंड अप इन नेगेटिव मार्किंग। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक ऑफ मैथ्स पेपर इज स्लीप एंड गो, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप, स्माइल एंड आंसर्स, है ना। चलो शुरू करते हैं। So everybody is clear? Anyone has any doubt till here? Akarshi, Ankit, Anshita, Achan, Aryan, anyone guys? Nikita, Sabha, Sana, Aryan, Sumit, Shreya, Tanisha, anyone has any doubt? Okay, great. तो कैसा लग रहा है गाइस ब्लड रिलेशन, अभी कैसा लग रहा है, कम ऑन, हाफ एन आवर से कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, हाउस द जोश ब्लड रिलेशंस में, धमाल। ये सेंसिबल वे है, इस सेंसिबल वे को अपन करेंगे, हाँ एकदम सेंसिबल। बोलो क्या चीज को नहीं भूलोगे, वापस चलो फटाफट बोलो। एग्जाम में जिनेश सर का आवाज गूंजना चाहिए, क्या गूंजना चाहिए, बोलो फास्ट, बोलो क्या गूंजना चाहिए, बोलो आवाज। और आवाज में क्या गूंजना चाहिए, बोलो जेंडर जनरेशन रिलेशन, बोलो जेंडर जनरेशन रिलेशन। इज इट वेरी वेरी क्लियर? और अगर अपन ये कर लिया तो हम कभी रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। इज इट वेरी वेरी क्लियर? तो शुरू करते हैं, आगे शुरू करते हैं बच्चों। एक और ट्रिकी क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस की बात चल रही है ना, तो हम ट्रिकी क्वेश्चंस के ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे। लवली गाइस, लवली, क्या बात है, व्हाट अ पार्टिसिपेशन, यू नो, आई एम लविंग दिस बैच, आई एम लविंग दिस बैच, व्हाट अमेजिंग पार्टिसिपेशन। आई एम श्योर लास्ट 2 दिन भी प्रोफेसर साहब से खुश हुए होंगे, दिस इज द वे यू आर पार्टिसिपेटिंग, लवली गाइस, है ना। चलो अब मजे की बात करते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं। वो ऐसे जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत लोग डर जाते हैं। 36 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ऐसे बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है हे भगवान व्हाट हैपेंड, but nothing, bigger the question, remember my logic, math stats LR, bigger the question answer will be easy, bolo bigger the question answer will be easy, bigger the question answer will be easy, है ना। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36।
आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर रेडी विद दिस एंड सबने इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. एवरीबडी इज टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन ऑल्सो द वे आई हैव डन इट. एवरीबडी इज टेकन द स्क्रीनशॉट. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. ओके, आई एम श्योर मेरा पेस सबको अच्छा लग रहा है. आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, आई एम नॉट गोइंग टू स्लो, है ना. सबको साथ में लेके चलना है अपने को आज, राइट. वी हैव टू टेक एवरीबडी टुगेदर एंड आई हैव टू मेक श्योर नॉट ओनली वन ऑफ यू बट ऑल ऑफ यू शुड पास, है ना. सब लोग सीए इंटर में देखेंगे बॉस. सीए इंटर इज द गोल. मिशन सीए इंटर. PQR STU PQR 6 लोग है मेंबर्स है, 6 लोग है मेंबर्स फैमिली में, है ना. इन विच 2 मैरिड कपल है. अच्छा सुनो प्लीज, अभी तुम बोलना मत सर गे कपल, लेस्बियन कपल, प्लीज नॉट अलाउड. कपल है माने एक मेल है एक फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल है. 6 लोग में 2 कपल है, ठीक है. ओके, तो मैं ऐसे बोलूंगा PQR STU. 6 लोग है. We have 6 people out of which we have 2 married couples. मतलब 2 कपल है तो मुझे कपल के जेंडर्स पता है, मेल फीमेल एंड देयर इज अगेन मेल एंड फीमेल. तो बचे हुए जो 2 लोग हैं उनका जेंडर क्वेश्चन मार्क है. मतलब मुझे 2 मेल है 2 फीमेल है और 2 का जेंडर क्वेश्चन मार्क है. क्या बात है. आगे बढ़ेंगे. T is a teacher is married to a doctor. A teacher is married to a doctor. मतलब मुझे T का प्रोफेशन मालूम है. T कौन है बोलो. टीचर. बोलो T कौन है. टीचर. Married to a doctor. Teacher married to a doctor. Who is mother of R and U? Who is mother of R and R और U की मम्मी. मतलब मुझे ये मालूम पड़ा आर और यू की मम्मी से शादी हुई है टी की. अरे हाँ या ना. वाओ, मतलब हुआ ऐसा है. अब मुझे यहां से जनरेशन मालूम पड़ने लगा बच्चों. क्या बात है. जोश, जबरदस्त 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 जबरदस्त. क्या बात है प्रभजोत भाई. चकदे फटे प्रभजोत सिंह. तनिष झा. मैथिली लोग धमाल सीए लोग बन रहे, मैथिली लोग सीए बन रहे. वैशाली सिंह क्या बात है. ठाकुर लोग बन रहे भाई, सब आंसर दे रहे. क्या बात है क्या बात है क्या बात है. चलो मैं एक बार अपना तरीका सिखा देता हूं. अरे आप लोग इतना फास्ट आंसर लिखोगे. क्या चाहते हो वनश्री, क्या चाहते हो. शुड आई सॉल्व और नॉट, है ना. चाहते हो कि नहीं मैं सॉल्व करूं. आप नहीं भी बोलोगे तो मैं करूंगा, ठीक है. नहीं तो इंस्टीट्यूट मुझे पैसा नहीं देगा, है ना. तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा. क्या बात है वैशाली, क्या बात है. डायलॉग बेड़ा धमाल. आगे बढ़ते हैं. क्या बात है. देखो आई रिपीट. अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर. डॉक्टर इज अ मदर ऑफ आर एंड यू. मतलब मुझे मालूम है आर और यू जो है ना ये नीचे है, इनका जेंडर नीचे है, ठीक है. इनका इनका जनरेशन नीचे है और इनकी मदर, इनकी माता. अरे हाँ या ना. और टी, तो टी कौन है. टी कौन है बोलो फास्ट, बोलो फास्ट. टी इज अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर एंड डॉक्टर इज अ मदर ऑफ आर एंड यू. ठीक है. डॉक्टर इज अ मदर ऑफ, मतलब मदर जो है ये डॉक्टर है, टी जो है ये टीचर है. दोनों मियाँ बीवी है. इज इट वेरी वेरी क्लियर. तो मुझे ये मेल है ये फीमेल है और दोनों के बच्चे आर और यू है. मुझे एक कपल मिल गया, एक कपल मिल गया. आगे सुनिए. क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी. क्यू द लॉयर. क्यू कौन है बोलो फास्ट. लॉयर इज मैरिड टू पी. मतलब ये एक कपल है. मुझे 2 मैरिड कपल मिल गए. बोलो कौन. आर और सी. क्यू और पी अगर एक कपल है बच्चों, क्यू और पी अगर एक कपल है बच्चों, तो यहां देखना आर और यू तो बच्चे हैं बच्चों, तो एस और टी की तो शादी हुई है. अरे हाँ या ना. एस और टी की तो शादी हुई है. इज एवरीबडी वेरी क्लियर. क्योंकि अगर पी क्यू की शादी हुई है, आई रोट पी क्यू की शादी हुई है, आर यू नीचे बच्चे है, तो बचा क्या टी और एस.
तो कपल मिल गए। तो एक कपल में मुझे मिल गया, क्या बोलो, फास्ट 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 फास्ट, क्या मिला, एक कपल क्या मिला, T और S। एक कपल क्या मिला, बोलो, P और Q। दो कपल मिल गए, शाबाश, दो कपल मिल गए। अब बोला है P हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। तो P का एक बेटा है और एक पोता है, बेटा और पोता, ग्रैंडसन इज कॉल्ड एज पोता। ऑफ द टू मैरिड लेडीज, वन इज अ हाउसवाइफ। देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। मतलब एक बच्चा है और एक इंजीनियर है। अरे हाँ ना, बोलो, एक बच्चा है और एक, दोनों में से एक बच्चा है और एक इंजीनियर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर एक मेल स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है, विच ऑफ द ट्रू इज अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली? ग्रैंड डॉटर का क्या रोल प्ले करेगा? लॉयर है, स्टूडेंट है, इंजीनियर है या डॉक्टर है? लॉयर नहीं है, लॉयर नहीं है, क्योंकि लॉयर तो क्यों है, लॉयर तो है। इंजीनियर जो है वो मेल है, इंजीनियर जो है वो, तो शी इज एन इंजीनियर, फीमेल नहीं चलेगा, जेंडर क्वेश्चन आ जाएगा। शी इज अ डॉक्टर, डॉक्टर तो ऊपर की जनरेशन की है, तो बचा कौन सा ऑप्शन? स्टूडेंट। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? बड़े से बड़ा क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं अगर जेंडर और जनरेशन क्लियर होएगा तो। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो भाई, चैट बॉक्स भर दो, चैट बॉक्स भर दो। कैसा लग रहा है एलआर? धमाल? क्या बात, क्या बात। दीपेश, रुचिता, रुचा, गार्गी, योग, लवली 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 गाइस। चलो एक और कुछ अच्छा सम करते वापस। तो एक और अच्छा सम मेरे नजर में है जो मैं कराना चाहूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत बच्चे आके मुझे ये पूछते हैं कि सर ये जो स्टेटमेंट है जरा बताइए। 55th क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, मजा आता है ये, ठीक है। 55th थोड़ा मस्त, थोड़ा फन हो जाए, बहुत सीरियस बातें हो गई आज हमारी। अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय, बोले हम प्रिजनर इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय हु केम टू विजिट हिम टू द जेलर। मतलब एक प्रिजनर एक बॉय को इंट्रोड्यूस कर रहा है। प्रिजनर मतलब वो जेल के अंदर है, ठीक है। वो एक बच्चा उसको मिलने आता है, तो वो जेलर को उसका इंट्रोडक्शन देता है कि ये बच्चा कौन है। तो जेलर उसको पूछता है प्रिजनर को, है ना, ये बच्चा कौन है। तो बच्चा का इंट्रोडक्शन कैसे देता है? क्या बात, शांति जी, आपका नाम शांति है पर हिला के रख दिया आंसर। शांति, सृष्टि, खुशी, निकिता, मां कसम, धमाल 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 धमाल। कि ब्रदर एंड सिस्टर्स आई हैव नन, मतलब मेरे कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। मेरा मतलब यू नो, ना मेरा कोई ऊपर वाला है ना कोई मेरा नीचे वाला है, टाइप्स हो रहा है ना। ना मेरे कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ध्रुव, यस, बच्चा हुआ। अरे ध्रुव, तुझे नहीं हुआ बच्चा, आंसर सन है। ओके, सो बॉस, उसने बोला ही इज माई फादर्स सन, मतलब मेरे पिताजी के बेटे का बेटा है। बोलो, सीधा सीधा बोलना, मेरा बेटा है। क्या मेरे पिताजी के बेटे का बेटा है? हाँ, मेरे पिताजी का बेटा मैं और उसका बेटा मेरा बेटा, तो आंसर इज सन बॉस, आंसर इज सन। क्या बात है। कंचन, वनश्री, यशश्री, तनुश्री, क्या बात है। आज सारी श्री देवियां हमारे साथ है, धमाल गाइस। सुमित, पिताजी के बेटे का बेटा मुझे माजा, मतलब मेरा खून है, मेरा बेटा है, माई प्रोडक्ट। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ओके, शाबाश। ये बहुत कॉमेडी था, इसलिए अपन ने किया 55th क्वेश्चन। ओके, तो यहां पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक और धमाल क्वेश्चन लेते हैं। 54th तो बहुत इजी है, अपन कहीं यहां लेते हैं। वाओ, 47th, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। मनन, ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर गाइस टिल नाउ? एनी डाउट टिल एनीवन? प्लीज, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। एनीवन हैज एनी डाउट्स? आर यू गाइस गेटिंग माई ट्रिक?
शाबाश ध्रुव, 4 के आएंगे एग्जाम में, क्या बात है। I'd love to see all of you with a prefix CA. One fine day I'll be happy to call you my colleagues. तो चलो, is that very clear? Lovely guys, lovely. चलो प्रभजोत, क्या बात है, पंजाब दा खून है। चलो आगे बढ़ेंगे। Okay guys, chalo, 47 sum. I request all of you to do 47 and tell me the answer. Come on, now you do it. I am waiting for the answer. 47. I am waiting for the answer. Come on guys. 47. Question is on your screen. क्या बात है जीविका शर्मा, तूने पहले से आंसर मार्क करके रखा है। चीटर, मैं देख रहा हूं तेरी बुक, मेरी दिव्य दृष्टि है। आई हैव दैट सिक्स सेंस, आई कैन सी। जीविका, इतना जल्दी कैसे आया? जीविका, आई एम सीइंग यू फ्रॉम समवेयर, ओके। हर्षिनी एंड भूमिका is getting uncle, rest all are getting different answers, okay? Okay, just wait, let everybody do it. कशिश, क्या बात। मोदी जी भी आए हैं लेक्चर में भाई। श्रेया, मोदी जी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं बॉस। कम ऑन, बी डिसिप्लिन्ड। भैंसिया, अरे सुमित, भैंसिया कैसे होगी रे? इंसानों का रिलेशन चल रहा है। अग्रहारी, भैंसिया, अच्छा भैया लिखा, वे स्पेलिंग एरर मत कर, मैं भैंसिया समझा रहे। very good, I can see very common answers, but still I'm gonna do because Bhumika has not got it right, and भूमिका भी मेरी जवाबदारी है बॉस, भूमिका को भी पास कराना है। ओके, साबले जी, एशली रॉड्रिक्स, प्लीज आंसर। एशली, अथर्व, शुभम, okay, come on, last 30 seconds, last 30 seconds. Yes Dhruv, Atharva, very good. हर्षिनी ने तो आंसर कर लिया। राहुल आंसर करो बेटा, राहुल आंसर करो, सबके साथ रहो राहुल। वेरी गुड आंसर राहुल, वेरी गुड, शाबाश, वेरी क्विक टू रिप्लाई। Okay, last 10 seconds. Last 5 seconds. चलो, ओके। मोदी जी रुक जाओ, मोदी जी अभी मैं करने वाला हूं। ओके, रेडी। अमंग हर चिल्ड्रन मतलब एक लेडी क्या बता रही है? अमंग हर चिल्ड्रन गंगा फेवरेट्स आर राम एंड रेखा। गंगा एक औरत है, मैंने उसका क्या आइडेंटिफाई किया? जेंडर। क्या आइडेंटिफाई किया? जेंडर। वो एक औरत है और वो एक माँ भी है। उस माँ के 2 लाडले हैं, माँ दे लाडले, राम एंड रेखा। माँ दा लाडला राम, माँ दी लाडली रेखा। क्या बात है ना? चलो, अब रेखा कौन है? रेखा शरद की मम्मी है, मतलब बेटी भी मां बन चुकी है। ओके, वेरी गुड। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल? मिथुन, है ना? तो उनके अंकल मिथुन उनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश हूं, रिलेशन में कितने प्यार है। देखो, द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल। क्या नाम है? रामलाल। हु इज सक्सीडेड बाय देयर सन गोपाल एंड मोहन।
मतलब रामलाल के दो बेटे गोपाल एंड मोहन। गोपाल की शादी गंगा से हुई और गंगा से शादी होके 35 साल हो गए। बोलो झगड़ा नहीं हो रहा है। और 35 ईयर में उन्होंने 3 इश्यूज किए, 3 बार शेयर इश्यू हुआ, 3 इश्यू। गोपाल और गंगा के 3 शेयर इश्यूज हुए, उसमें से एक तो राम है, एक तो रेखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना। अब पूछ रहे मिथुन और मोहन में क्या रिश्ता है। एक मिनट पहले सोचो, मोहन कौन है? मोहन किसका बेटा है? रामलाल जी का। मोहन किसका बेटा है? रामलाल जी का। अरे हाया ना, अरे हाया ना, मोहन रामलाल का बेटा है। मोहन की शादी के बारे में कुछ बोला नहीं है। मान लेते मोहन है, एक रामलाल जी है, रामलाल जी का बेटा मोहन है, 2nd जनरेशन है। अरे हाया ना। मोहन का भाई है गोपाल। मोहन का भाई कौन है? गोपाल की शादी हुई गंगा से। गोपाल की शादी हुई, गंगा को एक बेटी है रेखा। गंगा की एक बेटी है रेखा, जो है वो शरद की माँ है। रेखा कौन है? शरद की माँ है, मतलब रेखा की भी एक औलाद है। अरे है ना। Who is loved most by his uncle मिथुन, मतलब शरद को मिथुन, मतलब शरद जो उनका लड़का है उसके अंकल मिथुन उसको बहुत प्यार करते हैं। अरे भैया, भाई, ध्यान से सुनो, भाई की, वापस बोलो, भाई की शादी हुई, उनकी बेटी का बेटा को किसी अंकल प्यार कर रहे हैं, बहुत लाड कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन? कम ऑन गाइस, क्या रिलेशन हो सकता है? कोई रिलेशन नहीं बच्चों, एब्सोल्युटली नो रिलेशन। मैं एक फैमिली ट्री बना के दिखा देता हूं, सिंपल है, चलो मेरा स्टाइल। यहां देखो, सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली कौन है? रामलाल की 2 औलाद है। बोलो 2 औलाद कौन? बोलो फास्ट। गोपाल और मोहन। गोपाल और मोहन, है ना। गोपाल की शादी हुई गंगा से। क्या नाम है? गोपाल गंगा, बाबा, है ना। और गोपाल और गंगा के बच्चे हुए, उनमें उनके 3 बच्चे हुए, जिसमें उनका लाडला राम, लाडली रेखा। 2 के बारे में तो मुझे पता है। रेखा के बच्चे हुए, कौन हुए? शरद। शरद को उसके अंकल, शरद के अंकल कौन है? अब ये शरद के अंकल है बच्चा। शरद के अंकल मतलब कौन होंगे? वो रेखा और हस्बैंड के साइड के भी हो सकते हैं, रेखा के हस्बैंड के साइड के। अरे है ना, रेखा की शादी हुई तो रेखा का पति भी होएगा, तो पति के साइड के भी हो सकते हैं। अरे है ना, पति के साइड का कोई अंकल हुआ या गंगा के साइड का कोई अंकल हुआ, उसके और मोहन के बीच में कैसा रिश्ता होएगा? तो इधर मिथुन है, इधर मोहन है, किधर रिश्ता दिखता है? Are you getting my point? All of you clear? See, please, see my drawing. If you see my drawing, you will understand. मोदी जी आपका आंसर रॉन्ग गया था, आप समझ गए? वेरी गुड, मोदी जी समझ गए। भूमिका जी आपका आंसर गलत गया था बेटा, आप समझ गए? भूमिका, आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लाई बेटा। श्रुति सहारिया, वेरी गुड। मिथुन रेखा का भाई हो सकता है, प्रिजम्पशन पे रिश्ता नहीं बनाएंगे बेटा, प्रिजम्पशन पे रिश्ता नहीं बताएंगे बेटा। भूमिका, वी विल नॉट मेक द रिश्ता ऑन प्रिजम्पशंस। हर्षिता, भूमिका, ऑल ऑफ यू गॉट द सेम क्वेश्चन बेटा। मैं आज वापस बोलता हूं, अगर मुझे रिलेशन मालूम होना चाहिए तो मेरे लिए वापस बोल रहा हूं, क्या मालूम होना चाहिए? बोलो फास्ट। जेंडर और स्टॉप, ये 2 पहले मालूम होना चाहिए। अब मैं बोल रहा है शरद जो है ना, शरद, उसके अंकल मिथुन है। अंकल मिथुन होने से वो पैटर्नल है, मैटर्नल है, मला माहिती? मेरे को मालूम ही नहीं है, मेरे को रिलेशन ही नहीं मालूम। रिलेशन नहीं मालूम तो मिथुन का रिलेशन नहीं मालूम, तो मिथुन और मोहन का तो सवाल। मुझे जेंडर मालूम है, जनरेशन मालूम है, पर क्या मालूम नहीं है? रिलेशन। क्या मालूम नहीं है? So gender is right, generation is right, what is wrong? Relation.
ध्रुव गोपाल और गंगा का तीसरा बेटा ध्रुव तू ही है बेटा आज। अरे नहीं दिया इंफॉर्मेशन बच्चा, नहीं दिया है तो जानेगा नहीं ज्यादा अंदर। नेवर क्वेश्चन द क्वेश्चन, नेवर क्वेश्चन द क्वेश्चन। ध्रुव एवरी इंफॉर्मेशन मे नॉट बी अवेलेबल बेटा, ओके एवरी इंफॉर्मेशन मे नॉट बी अवेलेबल। डोंट ट्राई टू फाइंड द थर्ड चाइल्ड। पता चला बच्चा घूम गया तो ढूंढने निकला एग्जाम हॉल छोड़ के, ठीक है। ओके ऑल ऑफ यू रेडी? कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? फुल कंफर्ट, एवरीबॉडी फुल कंफर्ट? कम ऑन गाइस रिप्लाई द चैट यार, कम ऑन यार, तुम लोग का जोश किधर चला गया? धमाल। हाँ ध्रुव तेरे को तो एंटरटेन होएगा बेटा, तू तो मजा करने को आया था, मेरे को तेरे को पास कराने का है, तू धमाल कर रहा है इधर। चलो ओके, सो आई सपोज वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मैंने अलग अलग टाइप के, देखो आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने एक टाइप का चीज नहीं उठाया। आप नोटिस करेंगे तो हमारे कैसा होता है, क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं तो हमको पता है कि भैया ये टाइप के एग्जाम में आने वाले होते हैं, तो हर टाइप के मैं एक दो क्वेश्चंस उठा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाए ब्लड रिलेशंस के बारे में। ओके वेरी गुड वैशाली, शाबाश बेटा शाबाश, धमाल। चलो कौन आया रे? वनश्री आई, क्या बात है। चलो भाई डिमांड आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 43 डिमांड कौन डिमांड आ रही है भाई? डिमांड किधर से है भाई? एक हाँ निकिता बेटा पास हो जाएगी तो एक चॉकलेट भिजवा देना। 43rd क्वेश्चन निकिता के लिए, पास हो जाएगी तो एक छोटी 10 रुपीज वाली डेयरी मिल्क, इतना सही लेता हूं मैं, ठीक है। क्या बात है निकिता, मैं एड्रेस तेरे को भेज रहा हूं बेटा जूम चैट पे, प्लीज सेंड कुरियर। पता चला मनन कुरियर का चार्जेस ज्यादा हो गया। चलो पॉइंटिंग टू अ लेडी, एवरीबडी टुगेदर। अच्छा बॉस हाँ ये फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन है, अच्छा हुआ बेटा तूने मेरे को बता दिया, मैं करा देता हूं। क्या होता है मालूम है, एक फोटो लगी है भाई, एक दीवार पे एक तस्वीर लगी है, हम वो तस्वीर को देख के बोलते हैं वो जो इंसान है वो मेरा वो लगता है। नॉर्मली ऐसा कब होता है पता है? मैं बताऊं मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो बॉस मैंने भी एक बार शादी की, सच्ची बोलूं मैंने एक बार शादी की, और जब शादी की तो एक एल्बम बना तो क्या हुआ, उस एल्बम को हम टीवी पे चला रहे थे, आजकल डिजिटल एल्बम बनता है, टीवी पे चला रहे थे। अब एल्बम में फोटो दिखती है, बहुत सारे ग्रुप फोटो दिख रही है, तो वाइफ क्या मतलब वाइफ तो मेरे साइड के रिलेटिव्स को जानती नहीं है ना, क्योंकि वो तो नई और मैंने अरेंज मैरिज की थी। तो वो पूछती थी अरे वो जो फोटो में अंकल है वो कौन है, तो मैं उसको बताता था ये मेरे पापा के भाई के इसके उसके ये लगते हैं। तो ये जो हम करते हैं ना हरकत है, ये सब तभी करते हैं। ओके तो सुमित बोलता है ब्लिंकिट से मंगा देगी। बस सुमित ब्लिंकिट तेरे पापा की कंपनी थोड़ी ना है रे बेटा, वो भी डिलीवरी चार्ज लेगा ना 10 रुपए की कैडबरी के लिए। ओके चला चालू करते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, मीरा सेड। चलो मैं एक नया स्क्रीन ला रहा हूं आपके लिए, नया स्क्रीन। यहां पे एक फोटो लगा हुआ है, अज्यूम करो एक फोटो लगा हुआ है, यहां पे फोटो फ्रेम है बेटा। अरे माँ कसम शांति जी को मैं निकाल दूंगा लेक्चर में से, और जीविका को भी निकाल दूंगा। ये लोग तुरंत आंसर दे देते हैं, जो लोग फास्ट आंसर देते हैं दे आर माई एनिमीज। अरे हर्षिनी को आंसर राइट आ गया इस बार, क्या बात है। तनिषा क्या बात है, तनिषा क्या बात है। वैशाली क्या बात है, ओहो क्या बात है। चलो चलो मैं सॉल्व करता हूं। मैं सी आई एम द टीचर गाइस, आई एम द टीचर, लेट मी सॉल्व। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, तो यहां पे एक लेडी है, ठीक है, ये लेडी है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लेडी है। सो दिस इज अ लेडी, शी इज अ लेडी इन द फोटोग्राफ। आई एम श्योर गाइस ऑल ऑफ यू आर गोना अप्रिशिएट माय ड्राइंग्स। ओके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ड्राइंग बना सकता है, ये सबूत है आज इस लेक्चर में, सबूत है। 1 CA कैन ड्रॉ वेरी गुड। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड, ठीक है। थैंक यू सबा, आई एम श्योर यू आर गोना बाय दिस ड्राइंग। ओके आई एम गोना सेल दिस ऑन अमेजॉन। ओके सो मीरा ने बोला हर फादर मतलब किसके फादर? हाँ इस लेडी के। मीरा उसको देख के बोल रही है ना, ऐसा देख के, अरे है ना, मीरा किसको देख के बोल रही है? उस औरत को। तो उस औरत के फादर
ओके, माने इसके फादर, अरे हाँ है ना। चलो आगे देखते हैं, फादर्स ओनली सन्स, फादर का बेटा, अरे हाँ है ना, उसकी वाइफ, ठीक है, इज माइन, अरे है ना, शी हरसेल्फ इज मदर इन लॉ, शी हरसेल्फ इज किसकी मदर इन लॉ है, मीरा की। वैशाली क्या मस्त ड्राइंग है, देखो मेरा, पहले मैंने एक औरत बनाई, उस औरत के पिताजी को बनाया, पिताजी का बेटा, बेटे की अर्धांगिनी माने वाइफ, और बेटे की अर्धांगिनी माने उसकी वाइफ, किसकी MIL है, MIL मतलब समझे ना, गुड, आजकल की जनरेशन MIL कुछ और समझती है, MIL इज मदर इन लॉ, है ना, मदर इन लॉ इज मीरा, है ना। तो अभी पूछा है, ये लोग ने पूछा है, हाउ इज मीरास हस्बैंड, क्या पूछा, बोलो, मीरा का हस्बैंड, मतलब मीरा अगर औरत है और अगर वो उसकी कोई मदर इन लॉ है तो मीरा का कोई हस्बैंड भी होगा, अरे हाँ है ना, ओके, मीरास हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो, है ना। अब मुझे क्लियर आंसर मैं आपको बताऊं, क्या बात है, फोटो में शुभम, श्रेया, रेडी जी, रेडी जी, रेडी जी भी इधर ही है, अरे हाँ है ना। ये 4 ऑप्शंस गाइस, नेफ्यू, अंकल, सन एंड फादर, नेफ्यू, अंकल एंड सन एंड, पहले मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने कितना, सॉरी 43rd क्वेश्चन था, हाँ, तो मुझे बोला मीरास हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो, हस्बैंड का रिलेशन पूछा है विद द लेडी, अरे हाँ है ना, हस्बैंड का रिलेशन पूछा है विद द लेडी, कौन बताएगा, मीरा के पति कौन है, मीरा के पति कौन दिख रहे हैं आपको, अगर मीरा की मदर इन लॉ, अरे हाँ ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, इन दोनों का रिश्ता पूछा है, सी माई डायग्राम, नाउ इफ आई, वेरी गुड, आई एम श्योर, भतीजा, एब्सोल्युटली ध्रुव, एब्सोल्युटली क्लियर, भतीजा है, हिंदी में बोले तो भतीजा है, आर्यन बैंकर, एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट। मुझे सबसे पहले आंसर किससे चाहिए था पता है, मुझे निकिता से चाहिए था, क्योंकि निकिता का क्वेश्चन था। निकिता कुछ समझा क्या बेटा डायग्राम देख के, लवली मीन्स निकिता हैज गॉट द आंसर, एनीवन एल्स स्टिल हैज अ डाउट, डायग्राम आपके सामने है बच्चों, ये डायग्राम देखने के बाद अच्छे अच्छे समझ जाते हैं, वेरी गुड सुमित, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, क्या बात है, आंसर नेफ्यू है, भाई का बेटा है, क्या बात है, वेरी गुड कुणाल, राहुल, भाई का बेटा है, एब्सोल्युटली, इसको जनरेशन वाइज डिवाइड कर दूं, जनरेशन वाइज डिवाइड कर दूं तो बड़ा सिंपल है, जनरेशन वाइज डिवाइड कर दूं तो मीरा इज फ्रॉम द 3rd जनरेशन, मीरा इज फ्रॉम द 3rd जनरेशन, लेडी इज फ्रॉम द 2nd जनरेशन, लेडीज फ्रॉम द 2nd जनरेशन, और लेडी के फादर जो है वो टॉप जनरेशन, मतलब टोटल 3 जनरेशन है, आई रिपीट देयर आर 3 जनरेशंस गाइस, एंड देयरफॉर द आंसर इज नेफ्यू, इज ए वेरी वेरी क्लियर, सन नहीं हो सकता, फादर नहीं हो सकता, ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि 2nd जनरेशन वाला और कोई ऑप्शन ही नहीं है, लवली, जनरेशन को पकड़ो, जेंडर को पकड़ो, रिलेशन मिलेगा, लवली गाइस, लवली, चलो, so can I end this chapter now, can I end this chapter and can I move on to the next chapter guys, मेरा मन चले तो मैं जीवन भर आपको यही चैप्टर पढ़ाता रहूं, but then we all know time is limited, yeah we have Shruti Tantra Vahi, Shruti, हाँ बेटा प्लीज कैन यू बी लिटिल लाउड, 1 second, I'll increase my mic volume also so that maybe I'll be able to listen you much better, 1 second, 1 second Shruti, yeah Shruti, can you now repeat your question beta?
क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व अनसॉल्व बेटा क्या चाहिए? अनसॉल्व फिफ्थ. ओके, यू वांट क्या बोल 5050 यू वांट. ओके